Okay, next all of you write comparison of intensities. Comparison of intensities of maxima and minima. Comparison of intensities of maxima and minima in terms of ratio of amplitudes. In terms of ratio of amplitudes. Okay. So now we'll find the ratio of intensities. Okay. So intensities दो तब जगह पे आ रहे थे कंस्ट्रक्टिव के टाइम. Constructive के time I was getting I max, and I max was what actually? K into A plus B whole square. And destructive के time minimum intensity was what? K into A minus B whole square. Okay. यहाँ पे जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स इज व्हाट? A by B, बिकॉज दो वेव्स थे. A was what? Y1 A sin omega t and Y2 was B sin omega t plus phi. ठीक. सो रेशियो क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड रेशियो R A by B. सो I max by I mean क्या हो जाएगा? K A plus B का स्क्वायर by K A minus B का स्क्वायर. K got cancelled out. तो हमें A by B के टर्म्स में चाहिए, तो हम क्या कॉमन निकालेंगे? B कॉमन निकालेंगे. B कॉमन निकालेंगे तो क्या दिखेगा? A by B प्लस 1 होल का स्क्वायर बाय नीचे में से B कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? A by B होल का स्क्वायर. ठीक. तो B स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? B स्क्वायर, ये क्या है? R. A by B क्या होता है? रेशियो ना. या मैं एक और टर्म में से एक बार लिख देता हूँ, प्लस 1 स्क्वायर बाई B स्क्वायर A by B माइनस 1 स्क्वायर. एग्जाम में ये फॉर्मूला सब याद रहना चाहिए. I max by I mean का ये फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है ना, भूल मत जाना. और एल्स व्हाट यू कैन राइट A by B was what? R, तो R plus 1 स्क्वायर बाई R minus 1 स्क्वायर. ठीक है. राइट इट. राइट. टू प्रूव एनर्जी इज कंजर्व्ड, to prove energy is conserved in interference process. In interference process, y1 है A sin omega t, y2 is B sin omega t plus phi. ठीक है. ये दो वेव्स है, तो इसका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? एज आई सेड k a स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है कि नहीं? सो दिस इज k a स्क्वायर एंड व्हाट इज I2? दैट इज k B स्क्वायर. सो यू गॉट बोथ द इंटेंसिटीज. ठीक. अभी सोचो दोनों वेव इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है. दोनों वेव जब इंटरफेयर करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ द फाइनल वेव क्या हो जाएगा? एनी आइडिया? निकालो. व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ फाइनल वेव? ये दोनों जब मिक्स होते हैं क्या आता है? वाई क्या आता है? इंटेंसिटी. जो फाइनल आंसर है, हमें एक चीज पता है, व्हेनेवर टू वेव्स इंटरफेयर, इंटरफेरेंस होने से दिखता क्या है? दो चीजें दिखती हैं. यू सी वन थिंग इज कंस्ट्रक्टिव इन नेचर, और एक क्या दिखता है तुम्हें? डिस्ट्रक्टिव. दो ही तो दिखता है, और कुछ दिखता ही क्या? नहीं. इधर वी फाइंड इट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव. इन केस ऑफ ए कंस्ट्रक्टिव आई गेट I max which is what? K A plus B whole square, and in case of destructive I get I mean K A minus B whole square. So intensity of final wave जो भी है, that will be actually what? क्योंकि मेरा maximum भी आ रहा है, minimum भी आ रहा है. जब दो चीज आते हैं, what do we do? Average. So what I can do? I max plus I mean by 2. दोनों में K कॉमन है, K ले लेता हूँ कॉमन. A plus B whole square plus A minus B whole square by 2. तो A plus B whole square क्या हो जाएगा? K तो रहेगा A square plus B square plus 2AB, और वहां पे A square plus B square minus 2AB by 2. कटा. A square plus A square 2A square, B square plus B square 2B square, कॉमन निकाल लो. तो 2K A square plus B square by 2. ठीक. So I final wave is equals to K A square plus K B square, which is nothing but equals to I1 plus I2. तो final is equal to what actually? Sum of initial.
This shows energy is conserved because energy is proportional to what? Intensity. All of us know energy is what? Proportional to intensity. और यहाँ पे तो दिख रहा है final intensity is sum of initial. Therefore energy is what? Conserved. But यहाँ पे होता क्या है वो explain करना पड़ेगा. Energy is conserved. खाली होता क्या है? The energy is transferred from destructive interference places to constructive. Transfer of energy takes place. Transfer of energy takes place from destructive interference to where? Constructive interference. Understood? Clear? So यहाँ पे this is conservation of energy. फटाफट write a question. Write light waves from two coherent sources. Light waves from two coherent sources having intensity I and 2I. From two coherent sources having intensities I and 2I cross each other at a point. Cross each other at a point with a phase difference of 60 degree. With a phase difference of 60 degree. Full stop. What is the resultant intensity at that point? What is the resultant intensity at that point? Okay, go for it. Intensity क्या था? I and 2I. ठीक है. और phase difference कितना था? 60 degree. 60 degree. It is asking you to find I net. I net का क्या फॉर्मूला हुआ करता था? I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi. ठीक है. So this is what I plus 2I plus 2 अंदर में क्या होगा? I into 2I cos 60 degree. So this is 3I plus 2 into I square बाहर आ जाएगा. 2 का रूट कितना? रूट 2. cos 60 कितना होता है? 1/2. So this is 3I plus root 2I. ठीक है. तो I कॉमन लेंगे तो 3 plus root 2 क्या है? Next question you write. Light from two coherent sources. Light from two coherent sources of intensities. Light from two coherent sources of intensities in ratio. Of intensities in ratio 64:1 produces interference. Produces interference. Full stop. Calculate the ratio of. Sit down. Calculate the ratio of maxima and minima. Calculate the ratio of maxima and minima of the interference pattern. Maxima and minima of the interference pattern. Okay. Light from two coherent sources have intensities. I1 by I2 कितना है? ठीक है. I max by I min हमें चाहिए, है ना? ये दिया हुआ है. सोचते हैं क्या होगा? I1 by I2 हमें पता है I1 क्या था? K A square. I2 क्या होता है? K B square. तो इसको लिख सकते हैं ना? K A square by K B square. K कट गया. That implies A by B कितना हो जाएगा? 8/1. रूट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 8/1. I max by I min क्या होता है? K A plus B का स्क्वायर by K A minus B का स्क्वायर. K कटा? A plus B मतलब 8 plus 1 by 8 minus 1. 81 by 49. Next heading you give coherent and incoherent sources. Coherent and incoherent sources. Right, light sources are of two types. Light sources are of two types. Bit 1 coherent, bit 2 non-coherent. Light sources are of two types. Bit 1 coherent source, bit 2 non-coherent source. So first coherent sources में लिखो. The sources of light. The sources of light which emit. The sources of light which emit light waves. Which emit light waves of equal wavelength.
which emit light waves of equal wavelength, comma same frequency, comma same frequency, and are in same phase, or having constant phase difference. Equal wavelength, comma equal frequency, और and in same phase और constant phase difference, दोनों का phase same होगा या तो phase difference क्या होगा, constant होगा, are called coherent sources. Next you write non-coherent sources. In non-coherent you write two sources of light which do not emit light waves with constant phase difference, which do not emit light waves with constant phase difference are called non-coherent sources. Okay, all of you give the next heading, need of coherent sources for the production of interference pattern. Need of coherent sources for the production of interference pattern. Okay, I will explain. So what did I say first? Coherent, non-coherent. कोहेरेंट में क्या क्या होना चाहिए? सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, और क्या होना चाहिए? नो फेज डिफरेंस, सेम फेज या तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है। एंड नॉन कोहेरेंट में क्या होना चाहिए? फेज डिफरेंस नॉट कांस्टेंट, फेज डिफरेंस नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस टर्म क्या होता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। एज आई सेड, इफ टू वेव्स आर लाइक दिस, y1 है, कहां से हमें कुछ नहीं पता है, a sin ओमेगा t, और y2 क्या है? b sin ओमेगा t प्लस फाइव। अगर ऐसे हैं दो डिफरेंट वेव्स, ठीक, तो इंटेंसिटी क्या आया था अभी जो हम लोग किए थे डिराइव, दैट वाज व्हाट एक्चुअली? i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos फाइव, ऐसा था कि नहीं? इस एंटिटी को याद रखो, बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म। बहुत बार एंट्रेंस में पूछता है फाइंड द इंटरफेरेंस टर्म, तुम लोग नेट इंटेंसिटी निकाल के रखते हो। इंटरफेरेंस टर्म इज ओनली दिस एंटिटी, इसको इंटरफेरेंस टर्म बोलते हैं। तो अभी दोनों के लिए डिराइव करते हैं। सपोज कोहेरेंट सोर्स होता, देन चेंज ऑफ cos फाइव, यहाँ पे चेंजिंग फैक्टर कौन है? cos फाइव का है, cos फाइव एक चेंजिंग फैक्टर है, बाकी सब तो कांस्टेंट रहेगा ना, इंटेंसिटी तो i1 i2 सब फिक्स्ड रहेगा, cos फाइव कैन चेंज। इफ चेंज ऑफ cos फाइव इज कांस्टेंट विद टाइम, क्यों मैंने बोला चेंज ऑफ cos फाइव इज कांस्टेंट विद टाइम? क्योंकि फेज या तो नहीं है, फेज नहीं है मतलब क्या है? डिफरेंस क्या है? जीरो, या तो कोई कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, मतलब फिक्स्ड वैल्यू है। फेज डिफरेंस एक कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू पे रख रहे हैं, तो चेंज विद टाइम क्या होगा? नहीं रहेगा ना। अगर एक वैल्यू फाइव का एंगल फिक्स हो गया तो cos फाइव कैसे चेंज होगा? नहीं, वो चेंज होगा, टाइम बदले, बट cos फाइव विल नॉट चेंज। तो चेंज ऑफ cos फाइव इज कांस्टेंट विद टाइम। तो इसके दो ही केसेस हम लोग बन सकते हैं, एट एनी पॉइंट। उसमें वो क्या हो सकता है? या तो हमारा cos फाइव क्या हो सकता है? मैक्सिमम 1 हो सकता है, या तो cos फाइव को हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं? -1। और ये दोनों केसेस में इंटेंसिटी अलग अलग हो जाता है। यहाँ पे I max आ जाता है, which is nothing but what? √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर। लेके देखो cos फाइव की जगह 1, तो I1 को क्या लिख सकते हो? √I1 का स्क्वायर, √I2 का स्क्वायर प्लस 2 √I1 I2, तो क्या होगा? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे I मीन निकालेंगे तो क्या आ जाता था? √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। वी गॉट दीज टू डिफरेंट आंसर्स। बट अगर यहीं पे नॉन कोहेरेंट होता, सपोज यहीं पे होता, मान लेते हैं नॉन कोहेरेंट, तो क्या होता? चेंज ऑफ cos फाइव इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट
कांस्टेंट विथ टाइम। cos फाई का वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहता टाइम के साथ। इसका मतलब हमें पूरा cos फाई को ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। सपोज मैं एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लेता हूँ, cos फाई यहाँ से चालू होता है, मैं एक साइकिल पूरा लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ कि नहीं, एक साइकिल। समझ रहे हो या कोई डाउट आ रहा है? देखो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई। आई टुक वन फेज 0 से 2 पाई, एक कंप्लीट रोटेशन, है ना। तो उस केस के लिए चेंज ऑफ cos फाई इज नॉट कांस्टेंट विद टाइम, मतलब cos फाई का कोई भी वैल्यू हो सकता है क्योंकि वो तो चेंज हो रहा है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, सारा वैल्यू को एवरेज वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। क्या लेना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू ऑफ cos फाई। वी हैव टू कंसीडर ऐसे केस में दैट इंप्लाइज एवरेज वैल्यू ऑफ cos फाई हैज टू बी कंसीडर्ड, क्योंकि एंगल तो बदल ही रहा है ना, 0 डिग्री से 2 डिग्री हो जाएगा, 5 डिग्री हो जाएगा, 10 डिग्री, कुछ भी बदल सकता है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा। सो एवरेज वैल्यू ऑफ cos फाई हैज टू बी डिटरमाइंड। तो एवरेज वैल्यू cos फाई का मतलब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, टोटल वैल्यू ऑफ cos फाई फ्रॉम 0 टू 2 पाई। ऊपर जितना एरिया आ रहा है नीचे भी तो उतना ही एरिया आ रहा है ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो 0 से 2 पाई एक्स एक्सिस के साथ एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, ये प्लस ये करेंगे, ये पॉजिटिव में आएगा और ये क्या आएगा, नेगेटिव में। क्या होगा, 0। क्या हो जाएगा, नेट वैल्यू ऑफ cos फाई विल बिकम 0। तो अभी यही फार्मूला में हम लोग अगर डालेंगे आई नेट, क्या हो जाएगा, i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2, cos फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। सो आई नेट विल बी व्हाट, i1 प्लस i2। तो एंट्रेंस में ना गलती करने का यही रीजन रहता है। क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, टू नॉन कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक, originated with intensity I and 2I with an initial phase difference of 60 degree. With an initial phase difference of 60 degree क्यों दिया? C से कंफ्यूज, C से कुछ और, तो दोनों ही बन सकते हो, मत बनना, क्योंकि तुम्हें cos फाई देखते ही ना सबसे पहला थॉट दिमाग में आएगा, अब 3i ऑप्शन 4i ऑप्शन में होगा, i प्लस 2i प्लस 2i इंटू 2i cos 60 डिग्री या 30 डिग्री जो भी है काट कूट के तुम कर दो, बट वो नहीं करना है। डायरेक्ट आंसर क्या होता है, 3i प्लस 2i। तो नॉन कोहेरेंट शब्द बोल दिया मतलब इंटेंसिटी को डायरेक्टली क्या करो, ऐड कर दो, ठीक है। और अगर कोहेरेंट है तो पता करो, समझ गए ना। ऑल ऑफ यू गिव हेडिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना ये क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग two coherent sources of light, requirements for obtaining two coherent sources of light, ठीक, right। first right, coherent sources, bit 1, coherent sources of light should be obtained, coherent sources of light should be obtained from a single source by some device, from a single source by some device, should be obtained from a single source by some device. Next, two coherent sources can be obtained either by, two coherent sources can be obtained either by bit 1, source and its virtual image, source and its virtual image, ब्रैकेट में लॉर्ड्स मिरर, LLOYD, लॉर्ड्स मिरर। बिट 2 मतलब बिट इसकी क्या, बिट बी, ठीक है ना, राइट राइट। नेक्स्ट राइट द टू वर्चुअल इमेजेस ऑफ द सेम सोर्स, two virtual images of the same source, ब्रैकेट में लिखो फ्रेशनेल प्रिज्म, two virtual images of the same source, ब्रैकेट में फ्रेशनेल प्रिज्म, FRESNEL, फ्रेशनेल प्रिज्म। फिर थर्ड है two real images of the same source, two real images of the same source, ब्रैकेट में लिखो यंग्स डबल स्लिट, two real images of the same source,
ब्रैकेट में लिखो यंग्स डबल स्लिट, ठीक। नेक्स्ट, राइट द टू सोर्सेस शुड गिव मोनोक्रोमैटिक लाइट, द टू सोर्सेस should give monochromatic light. Next, the path difference between light waves from two sources must be small. The path difference from light waves of two sources must be small. Full stop. नेक्स्ट हेडिंग दो, पाथ डिफरेंस फ्रॉम टू सोर्स मस्ट बी स्मॉल, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग यू गिव कोहेरेंट सोर्सेस, प्रोडक्शन ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस मेथड्स, प्रोडक्शन ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस मेथड्स, प्रोडक्शन ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस मेथड्स। पहला वाला क्या था, कोहेरेंट वेव्स कैसे आएगा, है ना। नाउ कोहेरेंट सोर्स कैसे होंगे, मेथड्स। बिट 1, by division of wavefront, ब्रैकेट में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, by division of wavefront, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बिट 2, by division of amplitude, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फिर राइट बिट 2, by division of amplitude, एक है डिविजन ऑफ वेवफ्रंट, नेक्स्ट वन इज डिविजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ब्रैकेट में राइट पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इन थिन फिल्म्स, पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इन थिन फिल्म्स, ओके।